بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں محمد اکمل ملک۔ آج پاکستان بھر میں اقلیتوں کا قومی دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں اقلیتیں کس ماحول میں زندگی بسر کر رہی ہیں، اقلیتوں کے حوالے سے جو آئین پاکستان میں آرٹیکل موجود ہیں، اس کی روشنی میں جو قوانین بنائے گئے ہیں وہ کس حد تک مؤثر ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان قومیتوں کا ایک گلدستہ ہے جس میں تمام مذاہب بڑے آرام اور سکون سے رہ رہے ہیں۔ تو آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں آصف منور۔ آصف منور انسانی حقوق کے لیے کام کرتے ہیں اور عرصہ دراز سے 1 دہائی سے زیادہ عرصہ انہیں ہو گیا ہے انسانی حقوق کے حوالے سے کام کرتے ہوئے۔ تو آج ہم ان سے بات کریں گے پاکستان میں اقلیتوں کے حوالے سے۔ آصف، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں سر، آپ ٹھیک ہیں؟ آج پاکستان میں اقلیتوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ ویسے مائنورٹیز اس کے علاوہ عالمی سطح پہ منایا جاتا ہے، لیکن پاکستان کے لیے خصوصی طور پہ آج قومی دن میں منایا جا رہا ہے 11 اگست۔ 11 اگست کی ویسے ہی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ 14 اگست کو ہمارا یوم آزادی بھی ہوتا ہے۔ تو اس دن کی اہمیت کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے اس دن کے حوالہ سے خصوصی طور پر اس پر بات کرنا چاہی۔ جو پاکستان میں منارٹی ڈے منایا جاتا ہے وہ پیپلز پارٹی کے دور میں، پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں یہ طے ہوا تھا۔ یوسف رضا گیلانی صاحب جو سابقہ وزیر اعظم پاکستان ہے، انہوں نے یہ دن جو ہے وہ 11 اگست کو جو ہے وہ منانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اس سے بھی قبل بانی پاکستان جناب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب، انہوں نے اپنی پہلی دستور ساز اسمبلی سے جب 11 اگست 1947 کو جو ہے وہ بات چیت کی، انہوں نے منارٹی رائٹس پر بات کی، تو بیسیکلی یہ جو ہے یہ دن اس وجہ سے منایا جاتا ہے۔ اور ان کا تو بڑا بالکل کلیئر ویژن تھا کہ پاکستان میں رہنے والا ہر وہ طبقہ جو پاکستان کا رہائشی ہے، پاکستان کا شہری ہے، اس کو بلا تفریق تمام حقوق حاصل ہوں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، اپنی مساجد میں جانے کے لیے، اپنی چرچز میں، اور تمام لوگوں کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ تو اس کی تناسب سے جو ہے منارٹیز کا سمجھ لے کہ ایک ڈیکلریشن ہے، ایک ہیومن رائٹس کے حوالہ سے بھی اور منارٹی کے حوالہ سے، منارٹی رائٹس کے حوالہ سے بھی انہوں نے پہلی بار جو ہے وہ بات کی، اور آج تک جو ہے وہ بات ہو رہی ہے۔ اور اس کو ہماری ہمیشہ ہی یہ کوشش رہی ہے، اور ہم نے حکومت پاکستان سے مطالبہ بھی کیا ہے کہ اس کو باقاعدہ طور پر آئین کا حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ لوگ گورنمنٹ لیول پر بھی اس کو منا رہے ہیں، اور لوکل سطح پر سرکاری اور غیر سرکاری تنظیمیں اور ہیومن رائٹس اور منارٹی رائٹس کی تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں پاکستان میں، وہ بھی اس دن کو مناتی ہے۔ لیکن اس دن کو منانے کا یہ مقصد نہیں ہے بالکل کہ ہم لوگ وہ کیک کاٹ رہے ہوں یا اس طرح سے سیلیبریشن، جس طرح سے دنوں کو سیلیبریشن، اس حوالہ سے جو ہے وہ جب تک ہمارے یہ رائٹس جو ہے وہ انشور نہیں ہو جاتے، جس کی آئین پاکستان ہمیں ضمانت دیتا ہے، تب تک میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں اس طرح سے منانا چاہیے۔ لوگ مطالبات کرتے ہیں، مختلف ادارے، مختلف لوگ اس دن کے حوالہ سے جو ہے وہ منارٹی رائٹس پہ مطالبات کرتے ہیں۔ بات کر رہے تھے کہ آئین پاکستان کا تحت جو ہے نا اقلیتوں کو بہت سارے حقوق حاصل ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ویسے تو ہمارا پاکستان امن کا گہوارہ ہے، یہاں پہ کوئی مسائل اتنے زیادہ نہیں ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آئین پاکستان کے مطابق، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو قوانین لاگو ہیں پاکستان میں اقلیتوں کے تحفظ کے حوالے سے، ان کی تعلیم کے حوالے سے، ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے، ان کی شادیوں کے حوالے سے، کہ بہت بار بات ہوئی ہے کہ جو ہندو میرج ایکٹ ہے یا کرسچن میرج ایکٹ ہے، مطلب اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ان سے مطمئن ہیں یا اس میں مزید کام ہونے کی ضرورت ہے؟ جی دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ابھی بہت سارا کام منارٹیز کے حوالے سے ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ کسی کو راشن دے دینا، کسی کو مالی امداد کر دینا، یا اس کو گھر بنا کے دے دینا، یا کچھ اور فیسلٹیز دے دینا، مالی امداد کر دینا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ رائٹس نہیں ہے۔ رائٹس وہ ہوتے ہیں جو آپ کے لیے تمام کے لیے ایکولز ہوں، آپ کے لیے ایسا نظام وضع کر دیا جائے کہ جس میں آپ لوگوں کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، آپ لوگوں کو جیسے دوسرے لوگوں کو رائٹس ہوں اسی طرح سے آپ کو بھی ہوں۔ اس کی مثال میں اس طرح سے ہمیشہ اس آرٹیکل کو کوڈ کرتا ہوں جو آئین پاکستان کا آرٹیکل 25 ہے، بڑا خوبصورت آرٹیکل ہے، اور اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ آئین اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ تمام شہری برابر ہیں،
किसी जगह पे मजहब फिरका या किसी जगह पे नहीं लिखा गया कि तमाम शहरी बराबर है, उनको मसावी हकूक हासिल होंगे, बराबरी के हकूक हासिल होंगे। अच्छा, दूसरी बात जो आपने एजुकेशन की, अब हम उस पर आ जाते हैं। एजुकेशन के हवाला से वैसे तो मतलब कि हम कहते हैं कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और यकीनन हो भी रहा है, कुछ ना कुछ बेहतर हो भी रहा है। लेकिन अगर हम उस हवाला से देखें तो हर मजहब को जो है उसके मजहब की तालीम के मुताबिक जो है उसको तालीम हासिल करने की इजाजत हासिल है। अब जो बहुत सारे क्रिश्चियन बच्चे हैं जो पंजाब की सतह पर अगर हम देख लें तो वो जो जब हमारे दूसरे दिगर स्कूलों में जाते हैं तो वहां पर उनको इस्लामियात का मजमून जो है वो लाजमी पढ़ना पड़ता था। अब गवर्नमेंट ने किया है, इनिशिएटिव लिया इस पर कि वो अलग से होगा, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अगर कोई सिख बच्चा है, अगर कोई हिंदू बच्चा है, अगर किसी दूसरे मजहब का बच्चा है, तो उसको चाहिए कि पहले तो जो है ना उसके देनी चाहिए। हम लोग इस बात पे हमेशा कहते हैं कि इखलाकियात जो है, एथिक की बात जो होती है, वो जरूरी नहीं है वो उसको मतलब कि बाइबल पढ़ाई जाए या उसके लिए टीचर्स हायर किए जाएं। और उसमें एक और बड़ा मसला भी है, जो गैर मुस्लिम बच्चे होते हैं अकलियत से ताल्लुक रखने वाले, उनके लिए अरबी जुबान में थोड़ा सा बोलना या सीखना या उसको थोड़ा सा मुश्किल होता है। हर बच्चा उस तरह से पिक नहीं करता। और उसी तरह से आप देखते हैं कि पाकिस्तान में ऐसे कवानीन भी मौजूद है, बेशक कवानीन मौजूद है, लेकिन उसका कुछ गलत इस्तेमाल भी हमने देखा है कि कुछ हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि इक्वल सतह पे जब हम बात कर रहे हैं तो उनके लिए बराबरी के हों। इसी तरह से अगर आप देखें तो पाकिस्तान में हमारे पास एक बहुत बड़ा फिगर पड़ा हुआ है कि जो बच्चियां जो हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, मतलब कि ये तमाम अकलियत की बच्चियां जो हैं उनको जबरदस्ती उनके साथ जबरी तब्दीली मजहब के मसाइल होते हैं, उनकी कम उम्र की शादी उनके साथ की जाती है, उनको अगवा कर लिया जाता है, फिर उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाती हैं और चली जाती है। और ये मैं कोई खुद से बात नहीं कर रहा, ये आप इंटरनेट उठाकर देख ले, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स देख ले, आप नहीं, वो तमाम बात आपकी ठीक है इसमें, यानी कि हम ये देखते हैं कि इसमें बहुत सारी चीजें यकीनन वो तो खैर हकायक आलमी इंसानी हकूक की तंजीमें बताती हैं। HRCT की हाँ भी एक रिपोर्ट मौजूद है, ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इस पे काम किया है, बहुत सारे ऐसे वाकयात भी हैं। लेकिन जो मेरा बात करने का मकसद ये था कि क्या इसके अलावा आप देखने के एक हिंदू मैरिज एक्ट था, मतलब उसके हवाले से आप बताएं कि क्या सूरत हाल है, ये क्रिश्चियन मैरिज एक्ट था या इस तरह से सिख हाँ कम्युनिटी के हवाले से, तो क्या आप समझते हैं कि वो चीजें भी अभी तक जो है ना उसमें कहीं ना कहीं सियासी खला है, क्योंकि तमाम कम्युनिटीज के लोग चाहे क्रिश्चियन कम्युनिटी है चाहे सिख कम्युनिटी है सियासी पार्टियों का हिस्सा भी होते हैं, तो वो उस बनाने में कामयाब क्यों नहीं हो पाते, आखिर उनकी क्या वजूहत है? ये भी रिसेंटली अच्छी अमेंडमेंट हुई है और क्रिश्चियन मैरिज एक्ट जो है वो अभी हुआ है, इसमें काम हो गया है। हिंदू मैरिज एक्ट पे भी हो गया है काम, लेकिन उससे इतना ज्यादा बड़ा मसला नहीं था, वो तकरीबन हल हो गया हमारा ना, वो मिनॉरिटीज का जो मसला है। इससे भी जो अहम इशू है ना, आप देखें कि सानिया पिशावर हुआ, उससे पहले शांति नगर हुआ, उससे पहले गुजरान कोरिया का मामला हुआ, अभी रिसेंटली जड़ावाला का वाकया हुआ, फिर सरगोदे का वाकया हुआ। अच्छा, जब सानिया पिशावर हुआ ना तो उस पर आज खुद नोटिस लिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और उस पर तसद्दुक हुसैन जलानी जजमेंट आई। उसमें उन्होंने वाज़िया तौर पर लिखा कि पाकिस्तान में जो है वो मजहबी इकलीतें जो है वो गैर महफूज है। आप लोग जो है इस पर एक कमीशन बनाए मिनॉरिटीज का। उस कमीशन का काम क्या था? उस कमीशन का ये काम था कि वो जो कमीशन होगा वो अकलीती मसाइल पर जो है वो बातचीत होगी, उस पर इन मसाइल ये जो इश्यूज हुए हैं उन पर इंक्वायरी, जुडिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट्स जो हैं वो बनाई जाएंगी, और ग्रास रूट लेवल तक जो मसाइल हैं अकलीतों के उसको मॉनिटर किया जाएगा, वो देखा जाएगा। और किसी जगह पर जो है वो जॉब कोटा जो 5% कोटा हमें दिया गया है उसमें बहुत सारी वायलेशन हो रही है, उसको भी देखा जाएगा। आपके ये जबरी तब्दीली मजहब के जो मामला हो रहे हैं वो भी मामला जो हैं उसमें देखे जाएंगे। इसी तरह से ये रोज जो वाकयात होते हैं मजहबी इंतहा पसंदी के वाकयात हम कह देते हैं, या शिद्दत पसंदी भी हम कह देते हैं, और इतनी अदम बर्दाश्त माशरे में हो गई है कि हम सारे पाकिस्तानी हैं, मतलब पाकिस्तान में रहने वाला पाकिस्तान हर में बिल्कुल तबका है। सही कह रहे और हैं आप। हम लोग जो मिनॉरिटीज खास तौर पर है, ये कहीं से हिजरत करके नहीं आए, ये पाकिस्तान के शुरू से ही शहरी हैं शहरी हैं, और यहीं के रहने यहीं वाले के हैं। रहने वाले हैं। अच्छा, जिस तरह अभी आप बात कर रहे थे कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में तमाम शहरी को बराबर के ठीक ठीक है, इसमें अगर हम देखें कि इसमें सिर्फ अकलियतों के मसाइल नहीं है, जैसे पाकिस्तान के जो आम शहरी मुस्लिम शहरी हैं उनके भी बहुत सारे हाँ मसाइल हैं, इस पे भी यानी कि बहुत बात होती रहती है, लेकिन मेरे ख्याल में वो तमाम क्योंकि एक बहुत और मुआशरा हम जिस माशरे में रह रहे हैं, यकीनी तौर पर इसमें ये चीजें चलती रहती हैं। हाँ, अलबत्ता ये बात जरूर है कि उनकी बहुत सारे ऐसे मामला है जिनको हम किसी और रंग में ढाल देते हैं, मेरे ख्याल में ये करना नहीं चाहिए, बतौर माशरती हमारा मसला जरूर है। अब जिस तरह आपने बात की तालीम के हवाले से, तो मैं समझता हूँ तालीम का एक बहुत मसला, अहम मसला है। इसके अलावा हवाले से भी जो है ना आपके जो इंतखाबात होते हैं, तो आप क्या हाँ। समझते हैं कि इंतखाबात के हवाले से जो आपका तरीका कार राइज है अकलियतों के हवाले से, आप अब से उससे मुतमईन हैं या नहीं है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अकलियतें उसके बारे में क्या सोचती हैं? जी, ये बहस जो है वो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त अक़लियतों में पाई जाती है। बहुत सारे साथी जुदागाना इंतखाबात का मुतालबा करते हैं, बहुत सारे साथी जो है वो मखलूत तर्ज इंतखाबात का मुतालबा करते हैं, जिसके मैं भी ज़ाती तौर पर हक में हूँ, और बहुत सारे दोस्त जो हैं वो दोहरे वोट का मुतालबा करते हैं।
अच्छा, मसला ये है कि मसला वसाइल का है। अगर हम एमपी एमएनएस की बात करें या सेनेटर्स की बात करें तो वहां पर थोड़ा सा लगता है हमें इशू के शायद उस तरह से जो है वो शायद वो हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी या हिंदू कम्युनिटी उनके लिए एक वो सिस्टम बनाना, और वो गवर्नमेंट की वैसे तो जिम्मेदारी है, वोट का हक हर किसी को हासिल है, ठीक है, ये हक राय दही जो है हमारे आईनी पाकिस्तान का बड़ा प्यारा आर्टिकल है, ये हक तो हासिल है, लेकिन जो हमारे मिनॉरिटीज के लोग हैं उनको जो है वो चुना जाता है पार्टी बेस पे। अच्छा, चले जनरल नशिस्तों पर तो ये समझ आती है कि वहां पर वसाइल का इशू हो सकता है या उनको मुंतखब करने में उनको ये मसला सामने हो सकता है, लेकिन आप अगर लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम को देख लें, जो कि मकामी हुकूमतें हैं, और मकामी हुकूमतों का किरदार जो है वो बहुत अहम किरदार है हमारे मुल्क में। कोई भी मुल्क जो है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के बगैर चल ही नहीं सकता, मैं समझता नहीं। और नामुकम्मल पिछले है। 9 साल से ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारा ये सिस्टम नहीं चल सका, वैसे ओवरऑल नहीं चल सका, मिनॉरिटीज की बात हम बाद में करें, हमारा जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं बन सका, और जो इख्तियारात हैं वो निचली सतह पर मुंतकिल ही नहीं हो मुंतकिल नहीं हो सके। बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने उस पर काम किया, कोई भी गवर्नमेंट आती है वो फर्स्ट। अब भी 3 सूबों में इलेक्शन हो चुके हैं, और पंजाब जो वाहिद इतना बड़ा सूबा है वो अभी इससे तक हाँ महरूम नहीं है, हुई, ठीक है, इसलिए तकरीबन ये तकरीबन सारा है। सबका अच्छा, मसला है। इसमें अब दूसरी बात आ गई, दूसरी बात ये आ गई कि जो हमारी मजहबी अकलीतें हैं उनके जो काउंसलर मुंतखब होने हैं, ठीक है, वो काउंसलर होंगे सिलेक्शन के जरिए मुंतखब, पार्टी उनको नॉमिनेट करेगी, उनको उनका ग्रुप नॉमिनेट करेगा। वाई क्यों करेगा उनको नॉमिनेट? उनका वोट का हक है। मुशर्रफ दौर में आप देखें 2002 में 2002 की बात आप देखें तो उसमें मखलूत तर्ज इंतखाबात के तहत वो इलेक्शन करवाए गए। सही। अच्छा सर, उसमें ये था, उसमें बड़ा प्यारा सिस्टम था। उसमें ये था कि वोट लिया भी जाता था, दिया भी जाता था। मकामी सतह पे बात कर रहे हैं हम, नेशनल सतह पे नहीं बात कर रहे। उसमें एक तो अच्छा ये बात था कि मजहबी हम मांगी जो है वो बढ़ती थी। जो मसीही कम्युनिटी के नुमाइंदे थे या जो मजहबी अकलीत के नुमाइंदे थे वो वोट लेने जाते थे दूसरे अपने कम्युनिटी से, वो भी उनको वोट कास्ट करते थे, मसीही कम्युनिटी भी कास्ट करती थी। इस तरह से उनको इलेक्शन लड़ने का मौका मिलता था और उनको पता लगता था कि हाँ, और जो लोग चाहते थे जिस नुमाइंदे को बनाना वो उनको हक राय दही से बना लेते थे। अब कुछ सालों से क्या सिस्टम बन गया हुआ है, सिर्फ उनको एक बंदे को पकड़ा जाता है, उसको जनाब जिस तरह से नेशनल सतह पे उसको उठाया जाता है। अब उसको उसमें भी एक नया पंगा है। वो पंगा ये है कि उस बंदे को उठाया जाता है जिसको काम ही नहीं आता, जो बोल ही नहीं सकता, जिसको अपने राइट्स का पता नहीं है, उस बंदे को उठाकर उन्होंने जनाब वो काउंसलर बना दिया जाता है। और फिर ये भी बात सामने आई है कि उन लोगों से एफिडेविट लिखवा लिए जाते हैं कि बस जनाब हमने आपको पार्टी में काउंसलर बना दिया है। ये पाकिस्तान में सब सियासत का सब है, जहां भी ठीक है, मखसूस नशिस्तें हाँ। होंगी वहां ये मसला अच्छा, चलता फिर है। इससे तो बड़ा मसला मैं बात करना चाहूंगा सर, मुझे 1 मिनट दीजिए। इससे बड़ा मसला ये होता है कि ना तो उनको तरक्याती मंसूबों में शामिल किया जाता है, ना उनके लिए डेवलपमेंट के मंसूबे बनते हैं, ना उनको राइट्स मिलते हैं उस तरह से, ना जॉब कोटा पे मतलब वो तमाम काम जो आपके लोकल सतह पे होने होते हैं कहीं पे नहीं होते हैं, नहीं हो मेरा पाते। नजर नहीं आता। सही कह रहे हैं आप, लेकिन इसमें अब हमने ये देखा है कि जितना जहाँ जहाँ बात हो रही होती है कि अकलियतों में मसाइल हैं, ज़ाहिर है अकलियतों के साथ मसाइल भी होते हैं, और बहुत सारे मसाइल हमें नजर भी आए हैं, जिसमें आपने बहुत सारे वाकयात के जिक्र भी किया, लेकिन इस पर भी बहुत काम हो रहा है। उलमा मशाइख काउंसिल भी इस पे काम करती है, इसके अलावा पाकिस्तान की हुकूमतें भी उस पर काम कर रही हैं तमाम। लेकिन जब एक और चीज़ जो हमने देखी है, जो हमें नजर आई है कि तमाम सियासी पार्टियों में अकलियतें मौजूद होती हैं और वहाँ पे बाकायदा अहदेदार होती हैं, एम एन एज एम पी एस वहाँ पे मखसूस नशिस्तों पर उनके आते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो आने वाले आपके यानी कि जो अकलियतों के नुमाइंदे होते हैं, क्या वो नुमाइंदे उस हवाले से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे होते, या वहीं पे उनके साथ वही मसला आ जाता है जिस तरह हमारे यहाँ मखसूस रिश्तों का मसला आता है कि भाई जो कि आप पार्टी के नुमाइंदे होते हैं, लिहाजा आपसे काम नहीं हो पा रहा। तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ भी कहीं ना कहीं तब्दीली की जरूरत है कि या इसमें भी कोई कहीं पिक एंड चूज का मामला है? जी बिल्कुल, आपने एक अहम इशू की तरफ जो है वो तवज्जो करवाई है। ये एक मसला नेशनल सतह पे है। अब देखें कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो क्या करती हैं जनाब, वो भी अपनी मर्जी के बंदों को उठाकर जो है वो बना देती हैं। बहुत सारे लोगों ने तो आज तक काम ही नहीं किया, बड़ा अच्छा काम नहीं किया। कुछ गवर्नमेंट्स में हुआ है ऐसा काम, जिस तरह से लास्ट गवर्नमेंट में देखें तो एक अच्छी डेवलपमेंट हुई। 2019 में पंजाब की सतह पर जो है वो ह्यूमन राइट्स की कमेटियां बनाई गई। मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स फॉर मिनॉरिटीज अफेयर जो है वो इजाज आलम अगस्तीन साहब थे। उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, उन्होंने कहा कि ये हम पंजाब की सतह पर बनाए। बड़ी प्यारी फॉर्मेशन उसकी की गई, और हर जिला में डिप्टी कमिश्नर साहब उसके चेयरमैन थे, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर जो है उसके सेक्रेटरी हैं, अभी भी हैं। और उसमें डीपीओ साहब, उसमें जेल सुप्रिंटेंडेंट साहब, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, 7 सरकारी हेड और कुछ सिविल सोसाइटी से 2 लोगों को लिया गया। पहली बार ये पाकिस्तान में ऐसा हुआ कि मिनॉरिटीज के लोगों को सामने आने का मौका मिला और उन्होंने काम किया। और मैंने भी एज अ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो काम किया, और झंग ने जो है वो अवार्ड भी हासिल किया अपने वॉलंटियरली काम करके। अच्छा, मसला ये है कि जब वो आए तो वो भी तो सिलेक्शन के जरिए आए थे। उन्होंने आते ही एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, उन्होंने कहा नहीं हम लोग जो है वो
इसको फॉल करते हैं, हम काम करते हैं। और एक उनका काम जो है वो बड़ा अच्छा था, वो ये था कि उन्होंने 2% कोटा जो है, जो यूनिवर्सिटीज में है एजुकेशन पे, वो मुतारफ करवाया। आज भी बहुत सारे बच्चे जो है उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। लेकिन इससे भी मैं पहले बात करूं कि आज कुछ दिन पहले हमारे एक साथी ने राइट टू इंफॉर्मेशन के हक को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये डाटा लिया, तो उस डाटे में पता लगा कि बहुत कम बच्चे हैं जिनको इंटरटेन किया गया। और फिर वो डाटा गया एक हमारी एमपीए साहबा के पास, उन्होंने वो डाटे पे उठाकर वो करारदाद जो है वो असेंबली में दी है कि इस पर भी काम होने की जरूरत है। उस तरह से अकलीतों को राइट्स नहीं मिल रहे। तो ये बात नेशनल सतह पर हम देखें तो चले, अगर कुछ लोग वहां पर सिलेक्शन के जरिए आए भी सही, लेकिन उन्होंने कुछ ना कुछ सर्व किया। इससे भी पहले अगर हम बात करें, इससे भी पहले कि वो भी पीपल्स पार्टी के दौर की बात है, जनाब हमारे शहबाज भट्टी साहब जो कि शहीद हो गए, उन्होंने 5% कोटा जो है वो मुतारफ करवाया, जो कि जॉब कोटा था मिनॉरिटीज के लिए। अच्छा, बदकिस्मती के साथ उन्होंने वो पहली बार ये इनिशिएटिव लिया और वो उस वक्त एक नोटिफिकेशन जारी हुआ। हमारा मुतालबा ये है, हम ये कहते हैं कि नोटिफिकेशन जो है वो आने वाली कोई भी गवर्नमेंट उसको कैंसिल कर सकती है, वो उसका राइट्स नहीं मिल सकता। हमारा ये मुतालबा है कि उनको जो है वो नोटिफिकेशन को कभी कैंसिल किया जा सकता है, लेकिन जो भी गवर्नमेंट आती है उसका एक करारदाद करे, उसको बकायदा कानून साजी के तहत उसको लॉ बनाए, लॉ बना के उनको परमानेंट जो दे। और इससे भी एक जरूरी बात मैं बताऊं कि हमारी अफराज शुमारी जो कि मर्दमशुमारी होती है, ये जब भी हुई है ना, अभी भी डिजिटल हुई है, वहां पर मिनॉरिटीज को कभी वाज़िया तौर पे नहीं बताया ये मसला रहा है इसमें। बल्कि मैं कहता हूँ कि कुछ रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं कि इसके वाले से जो है ना लेकिन ये मैं समझता हूँ कि इसमें ना सिर्फ अकलियतों का मामला नहीं है। इसमें हमने कई जगह कराची में आप देखें, सिंध कराची क्लेम करता है कि कराची का एमपीएम वाले क्लेम करते हैं कि हमारी जो है ना कराची की मर्दमशुमारी ठीक नहीं। इस तरह बहुत सारे इलाकों में ये एक ओवरऑल सिस्टम का सिस्टमेटिकली इसका प्रॉब्लम हम कह सकते हैं, लेकिन इसको बरह रास्त हम उससे मुंसलिक नहीं कर सकते। सिस्टमेटिकल प्रॉब्लम जरूर है। लेकिन जो मेरा सवाल असल में ये था, वो ये था कि क्योंकि वो नुमाइंदे बैठे होते हैं, जिस वक्त हम देखें पंजाब के सिख कम्युनिटी से जो है ना वो मिनॉरिटीज के जो है ना वो सूबाई वजीर भी बनाए गए इस तरह। लेकिन मसला ये है कि वो आते उस कम्युनिटी से हैं, लेकिन क्या वो समझते हैं कि वो बैरियर्स की वजह से काम नहीं कर पाते जो आप सब बात कर रहे हैं, या वो बैरियर्स हैं, या वो आप समझते हैं कि या आज खुद उनमें जो है एक पॉलिटिकल जिस हमारे यहाँ सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है कि हम पार्टी के महीने मिन्नत है और हमसे काम नहीं हो पाता, हम पार्टी। तो ये मेरा जवाब आपने सर दे दिया है। आप क्या, ये जो लोग हैं पार्टी के मरहूम मिन्नत है, इनके भी हाथ काट दिए जाते हैं। हमारे ये मुशाहिदे में आई ये बात कि कुछ मिनिस्टर्स, कुछ एमपी हजरात काम करना चाहते रहे हैं और करना भी चाह रहे हैं, अभी भी करना चाह रहे हैं, लेकिन उस तरह से उनको काम नहीं करने दिया जाता। और मिनॉरिटी राइट्स पे तो मैं आपको बताऊं कि जब हम देखते हैं माशरे की सूरत हाल, हमें वैसे तो देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हमारे लॉज देखे ना, आईने पाकिस्तान में मतलब कि लिख दिया गया कि मिनॉरिटी का बंदा वजीर आजम नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? वो पाकिस्तान का शहरी है, ठीक है। उसके और बहुत सारी कदगने हैं उस पर जो है वो स्पेसिफिक कर दिया गया। मैं ये इसलिए नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान हमारा है, हम सबका पाकिस्तान है। बराबरी की बात होनी चाहिए। देखिए जब पाकिस्तान के शहरी जब आइन में लिख दिया गया है और इस्लाम में मतलब अगर हम अपने जब हम बराबर के मतलब इस्लाम कहता है कि आप जो है हाँ जी, तो इसमें ये वो बात नहीं है जिसके मतलब कि मेरे कहने का मकसद ये था कि क्योंकि असल में हम पॉलिटिकल सिस्टम में इसमें बैठे हैं। बुनियादी तौर पर ये खराबी, जो मेरे बात कहने का मकसद ये है कि वो ये है कि ये खराबी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की है कि हम उस पॉलिटिकल सिस्टम को ठीक करने के लिए मतलब क्या किया जा सकता है कि ये पॉलिटिकल सिस्टम जिस तरह हम अमूमी तौर पे बात करके हैं कि रिजर्व सीट्स जो होती हैं उन पे जो भी एमएन एमपीएस आते हैं या जो भी आते हैं वो यकीनी तौर पे पार्टी के मनोनीत होते हैं। लेकिन अकलियतों के हवाले से अगर हम इसको देखें कि सिस्टम को बेहतर कैसे किया जा सकता है ताकि उनके हवाले से बात की जा सके, तो इस हवाले से आपके ज़हन में क्या मतलब? सर बेहतरी के लिए जैसे हम इक्वल राइट्स हम तो शहरी भी मांग रहे होते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि उनको वहां पर भी जो है वो एंटरटेन करें और जनरल नशिस्तों पर उनको टिकटें जारी करें, उनको वही रिस्पेक्ट दें। करते हैं, कुछ क्वार्टीज ने की हैं, बड़ी अच्छी अच्छी मिसालें हमारे पास हैं। है और फैसलाबाद में भी हुआ है, ऐसा ही वो दिया है, लेकिन वो एक जीतना ना जीतने का अलग बात है। आप कहने का मकसद है एक मखसूस परसेंटेज जरूर होनी चाहिए, परसेंटेज। हाँ, इसको खत्म ना किया जाए, लेकिन ये है कि वो उनको थोड़ा सा जब तक हमारे हालात ठीक नहीं होते, एक मखसूस परसेंटेज बराबर होनी चाहिए और उसकी कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो यानी कि एप्लीकेबल हो, जिसपे यानी कि साथ साथ काम होता रहे। अभी आप बात कर रहे थे कोटा सिस्टम के हवाले से, उसमें आपने बात दी थी एजुकेशन के हवाले से। हम अमूमन देखते हैं कि 5% एक कोटा मौजूद होता है कि वो जो है ना मिनॉरिटीज के लिए। तो आप क्या समझते हैं कि आपने इस पे काम भी किया है, आपने इस पे मतलब इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट भी भिजवाई थी, तो क्या समझते हैं कि ये क्या इसकी इम्प्लीमेंटेशन में कोई खराबी है या ये वहीं पे फिर हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में आके ये चीज घुस जाती है? क्या कहते हैं इसको, इस पे कहाँ मसला है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जॉब कोटा जो है ना हमारा 5% जॉब कोटा है, लेकिन 5% कभी मिला नहीं है। हमने एक असेसमेंट, हमारा एक अदारा है उसने असेसमेंट की है, इस पे बकायदा सर्वे कंडक्ट किया है
और इस चीज को चेक किया है। 5% कोटे में से भी हमें 2.5% और इस तरह से जो है वो मिला है। जो मिनॉरिटीज है ना पाकिस्तान में रहने वाली, इसको बेहतर किया जा सकता है। हमारे जो ऊपर हमारे ऑफिसर्स बैठे हैं, हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, पंजाब गवर्नमेंट है, इसको बेहतर कर सकती है। तो इसमें बेहतरी तो आनी चाहिए, मैं तो जाती तौर पे यही सोचता हूँ कि इसमें बेहतरी आनी चाहिए, लेकिन आएगी तब जब हम करना चाहेंगे ना, सिर्फ बयानात से और ये मसले हल नहीं होंगे। अब देखें कि बानी पाकिस्तान, चूंकि हम 11 अगस्त के हवाले से बात कर रहे हैं, तो मैं फिर एक बार याद करवाना चाहूंगा, बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब जब वो पहली दस्तूर साहब असम्बली से 11 अगस्त को बात कर रहे, तो उससे पहले उनके साथी कौन कौन थे? उसमें जोगिंदर नाथ मंडेल था, वो बिल्कुल वो दिलत कम्युनिटी से था, जिसको बिल्कुल हम कहते हैं कि वो शुगर थे, ठीक है, उनको साथ लेके चले। उन्होंने दीवान बहादुर एसपी सिंघा साहब को रखा, आप सिसल चौधरी साहब को कैसे भूल सकते हैं, जस्टिस एक और नीलिस को कैसे। तो ये वो लोग हैं जो एक मिसाल है पाकिस्तान में, और बहुत सारे हमारे हीरोज हैं जो नाम है, जस्टिस भगवान दास है हमारे, ये वो लोग हैं जो हमारे नेशनल हीरो है, ठीक है। और उनको जहरी बात है गवर्नमेंट ने वो उनको किसी ना किसी जगह पर बताते भी हैं, वो हर साल बताया जाता है। तो मकसद बताने का ये है कि जिस जिस शख्सियत ने इस मुल्क को बनाया ना, वो खुद इनको साथ लेके चले हैं, ठीक है। तो जिस तरह से हम समझते हैं कि खवातीन के बगैर ये मुल्क पूरा नहीं है, जब बच्चों के बगैर हम कहते हैं कि यार ये गैर जरूरी, हम सब मिलकर, उसमें मिनॉरिटीज भी हैं, उसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी भी हैं, मजोर अफराद जो है हमारे माशरे का अहम हिस्सा है, उनको भी पीछे नहीं छोड़ सकते हम, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी पीछे नहीं छोड़ सकते हम, खवातीन को पीछे नहीं छोड़ सकते हम, तमाम लोगों को साथ लेके हमारा चलना एक मेन है कि हम लोग सब मिलकर इकट्ठे मिलकर साथ चलना चाहिए। ये आपकी बात ठीक है, लेकिन असल बहुत सारी चीजें, एक चीज मैंने देखी है, वो मेरे मुशाहिदे में आई, आप इसको ज्यादा बेहतर तरीके से बयान कर सकते हैं कि ਅਸੀਂ आम तौर पर ना माशरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ कई जगह ਤੇ ਵੇਖਿਆ कि जनाब ने कि बच्चे वैसे नहीं पढ़ते, लेकिन ਅਸੀਂ देखिया कि हमने ये देखा है कि जब अगर हम सिंध की तरफ जब हम रुख करते हैं तो वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी यकीनन बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, लेकिन वहाँ पे पढ़े लिखे हिंदुओं की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। अगर हम पेशावर या किस तरह रुख करते हैं, सिखों की बहुत बड़ी कारोबार, हमने जब देखा कि पंजाब में जब हम आते हैं तो हम मसीह भाइयों को जब देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये इनका जो एजुकेशन रेट है, यानी कि मतलब जो वो यानी कि वो इतना नहीं है। उसकी क्या वजह आप समझते हैं कि ये क्योंकि एक पढ़ा लिखा माशरा जो है ना, एक बेहतरीन जो है ना वो अफराद, पढ़े लिखे अफराद बेहतरीन माशरा तश्कील करते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ भी कहीं ना कहीं कमी है कि जो इनका यानी वो बहुत कम है शरह ख्वानगी, इसकी क्या वजह है? हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, पंजाब में सूरत हाल है ये वाली। और अभी तो खैर बहुत सारे बच्चे जो है वो पढ़ लिख कर ऑफिसर्स भी बने और सारा, लेकिन ये हर किसी को नसीब नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। सीएसएस की, पीएमएस की, ये बहुत सारी सीटियां पे भी वेकेंट पड़ी हुई हैं। हमारा जो कोटा पे उसमें भी यही बात बताई जाती है कि पढ़े लिखे बच्चे नहीं है। अब इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इसमें जो है वो रियासत के, आपको याद है कि आर्टिकल 25A में लिखा हुआ है कि रियासत की जिम्मेदारी है कि वो तमाम शहरियों को बिला तफरीक मुफ्त और म्यारी तालीम जो है वो मुहैया करेगी। बिल्कुल जबरदस्त है ओवरऑल देखें तो वो। अच्छा, मिनॉरिटीज के लिए सबसे बड़ा मसला क्या है? एक तो बेरोजगारी एक इशू है, सबसे बड़ा मसला जो है, उन लोगों के पास उतना सरमायाकारी नहीं है, उनके पास माली वसाइल नहीं है कि वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ा सके, उनको उनकी परवरिश कर सके, उनके लिए वो तमाम अखराजात जो है, मैं थोड़ी सी आपकी बात कर सके। अच्छा, दूसरी निस्बत जो है वो हमारे मिशनरी स्कूल बनाए गए हैं, मिशनरी स्कूल बनाए गए थे, बल्कि मिशनरी स्कूल जब आए तो वहां पर भी कुछ बच्चों को अकोमोडेट किया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि काम नहीं हो रहा, बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन जिस तरह से काम होना चाहिए शायद उस तरह से नहीं हो पा रहा। ये मैं बात इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि ग्रास रूट लेवल पर, बिल्कुल निचली सतह पर आप चले जाएं, ठीक है, तो वहां पर देखे जाके वो सूरत हाल नहीं है। आज भी गांव में, मैंने यहाँ शोरकोट का एक गांव है जो कि नया आबाद हुआ है, उसका नाम जोसफाबाद कॉलोनी रखा गया है, टोबा और शोरकोट के दरमियान में है वो गांव, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट झांग में आता है। मैं वहां पर गया कुछ साल पहले, मैंने वहां पर देखा कि वहां पर पीने का पानी, साफ पानी मुयसर नहीं है, वहां पर बिजली की सहूलत मुयसर नहीं है, वहां पर बच्चों के लिए स्कूल ही मुयसर नहीं है। चर्च की प्लेटफॉर्म से एक स्कूल बनाया हुआ है, और मैं देखकर हैरान हो गया इस बात को कि वो उन्होंने कुएं खोदे हुए हैं पानी निकालने के लिए, वो वहां से पानी लेते हैं, बिजली नहीं है, और बिजली जहां पर है वहां के एमपी एमएनए साहब वहां पर बिजली नहीं आने देते, जी आपने ये नई कॉलोनी बना रही है, तो ये उनका क्या कसूर है? मतलब ये तो रियासत की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी तो ठीक है। जिस तरह अभी आसिफ बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में जो है ना कि अक़लियतों के मसाइल है, ये बात यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में अक़लियतों के बहुत सारे मसाइल हैं। ख़ुसूसन हम इसमें देखते हैं कि जब कोई भी ऐसा मामला होता है उसको मजहबी रंग दे दिया जाता है, तो एक जो हमारी अज खुद इंसाफ करने की जो है जो ज़हनियत है, मेरे ख्याल में इससे हमें, लेकिन इससे बहुत यकीनन बहुत ज़्यादा काम भी हो रहा है इससे मजहबी हम मांगी के वाले से, और इस पर को रियासत की जानिब से बड़े सख्त इनिशिएटिव भी
लिए गए हैं, उसमें कोई शक नहीं कि मामला आने वाले दिनों में बेहतर भी होंगे। लेकिन असल चीज़ ये है कि हमें बतौर शहरी न सिर्फ सबको तस्लीम करता है, बल्कि इन्हें भी तस्लीम करना है, और इनके ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं जो खुलकर बयान बाज़ औक़ात नहीं किए जा सकते। लेकिन हुकूमतों को चाहिए, सियासी हुकूमतों को चाहिए कि इससे मिल बैठकर बात करें, और ख़ुसूसन उन नुमाइंदों को जो अक़लियतों की नशिस्तों पे आते हैं, लेकिन उनको भी कम अज़ कम हमारे आके, लेकिन मसला ये बन जाता है कि वो आते साथ ही हमारे उसी पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं जो हमारे यहाँ मौजूद है, जिसकी वजह से हमारे पॉलिटिकल सिस्टम जो है ना, वो भी नहीं चल पा रहा है। जिस तरह हमारा पॉलिटिकल सिस्टम नहीं चल पा रहा है, इस तरह हमारे अक़लियतों के मसाइल भी हल नहीं पा रहे। तो मेरे ख्याल में इससे बैठ के सोच के एक अच्छी लाएमल बनाना चाहिए, एक अच्छी पॉलिसीज बनानी चाहिए, और इस पे हर कम्युनिटी से इनकी यानी कि बात होनी चाहिए, उनसे राय ली जानी चाहिए, और इन मसाइल को हल करना चाहिए। यकीनन पाकिस्तान सबका है, और आईने पाकिस्तान के तहत हर शहरी को बराबरी का हक मिलना चाहिए। हमें मिलकर ही इस पॉलिटिकल सिस्टम को और इस निज़ाम को ठीक करना है, और आईने पाकिस्तान के तहत इस मुल्क को चलाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान हम सबका है, हमारा है, तमाम अक़लियतों का है, और हम इस उम्मीद के साथ कि आइंदा आने वाले जो इस 14 अगस्त के बाद जो आइंदा 14 अगस्त आएगा, हम बेहतर सूरत हाल में बैठे होंगे। मुझे और आप सबों को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।